MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया MSMECCII ने अपने आगामी सम्मेलन 5वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इन 25 विभिन्न सेक्टर्स इन वन इवेंट की घोषणा करने के लिए 25 अक्टूबर 2024 को होटल रॉयल प्लाजा नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। MSMECCII के अध्यक्ष डॉ इंद्रजीत घोष के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड स्थिरता नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मिशन के तहत with 25 different sectors in one event. So that is the main attraction. And the subjects are, plastic recycling, waste to wealth, and zero waste. Then e-waste recycling technology, EPR and circular economy, green energy, hydrogen, biofuel, biogas, ESG, CSR, carbon neutrality. Then rubber innovation, sustainability, rubber and tire recycling, electrical mobility, battery recycling, and OEM. And startup conclave and funding from banks, SIDBI and venture capitals and PSUs. So and the last one is handicraft, jute, leather, textile, garments and home furnishing. ऐसी क्या खासियत होगी सर इस इवेंट के अंदर जो एक बार होने जा रहा है? क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे इवेंट्स प्लास्टिक को लेके और इस मुद्दे को लेके बहुत इवेंट होते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए इसमें दो पहली बात तो ये है कि इन वन इवेंट यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू मीट लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स. So that is one of the biggest events. And second thing, it's a golden opportunity for global networking because 10 to 15 countries are participating, and from Pan India also, entire India, Pan India, there are a lot of industries are also coming. So it is a golden opportunity for global networking. सर नियमों को लेकर के सबसे studio firm HPF Direct Limited. So normally we help companies, but we've seen that there's a lot of problem in Indian MSMEs and startups. So government is doing a lot of things, and this is the India decade. But the problem is that things the government is building, even a small schemes, is not reaching to the people, from even a energy sector to even a startups or any other segments. So we are trying to just build that kind of bridge the gap, where we will just connect all these industry experts or government to the MSMEs. So I think this is the great initiative which is taken care by MSME CCII, where they can help obviously MSMEs and startups to grow their businesses and develop the nation. Thank you. Thank you. Sir, मैं डॉक्टर इंद्रजीत घोष, ग्लोबल चेयरमैन ऑफ MSME Chamber of Commerce and Industry of India, and also CMD of World Grespo Foundation. क्या कहना चाहेंगे सर, आज की प्रेस वार्ता किस लिए रखी गई थी? इस बार तो इसलिए रखी गई है बिकॉज हमारे इवेंट आ रही है 18 और 19 नवंबर, जस्ट आफ्टर 20-25 days. The main reason is to forecast all these interviews and all these press meets to the entire media, social media, LinkedIn, Facebook, and all of our customers, and to ask them to join us. Such a big event is happening. किस बिहाफ पे इवेंट और क्या मोटिव रहेगा? इवेंट की मोटिव यही है कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी जगह पे कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है वो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के ऊपर होता है. यहाँ पे 25 सेक्टर के ऊपर है. तो लोग जब विज्ञान भवन के अंदर आएंगे वो कोई भी सेक्टर में कोई भी जगह पे कोई भी सेशन अटेंड कर सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज. एंटायर इंडस्ट्री, डिफरेंट सेक्टर्स, पीपल आर बोथ आर टुगेदर इन द कॉन्फ्रेंस, so that lot of networking will be possible during that meet. And industry में what is happening all over the world, that is also people will come to know. क्या मैसेज रहेगा सर व्यूअर्स को? व्यूअर्स को यही मैसेज दे रहा हूँ कि such a big event is happening, first time in the country, first time in the world, so everybody should come and join us and take the benefit of global networking. सर जो ग्रीन एनर्जी है उसमें सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट, और उसमें नीतियों में जब हम कुछ भी बना रहे होते हैं, जो नीतियां बन रही होती हैं उसमें कहीं ज़्यादा हम ड्रॉबैक्स देखते हैं आती हैं. तो इसको आप कैसे लेते हैं, किसको ठीक करने की कोशिश कैसे करते हैं? जैसे देखिए अभी हमारे जो एक प्रोग्राम हो रही है उसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर है स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड फंडिंग फ्रॉम बैंक्स, सिडबी एंड वेंचर कैपिटल एंड PSU. हमारा मकसद ही यही है. हम कुछ स्टूडेंट को भी बुला रहे हैं जो सेकेंड ईयर में पास आउट है, कुछ स्टार्टअप को भी बुला रहे हैं, 400-500 MSMEs भी आएंगे कि उनको फंडिंग कराएंगे. फंडिंग का जो बेसिक प्रॉब्लम उनका है, MSMEs का जो बेसिक प्रॉब्लम है फंडिंग. सो उन लोगों को जिनका सिविल ठीक है तो उनको फंडिंग हो जाएगी. बैंक करेंगे, सिडबी भी आएगा, वेंचर कैपिटल भी आएंगे. एंड आज से कुछ साल पहले इतना फंडिंग की पोजीशन था नहीं, और नाउ इट इज लॉट ऑफ बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन दे हैव कम फॉरवर्ड टू डू द फंडिंग टू द इंडस्ट्रीज टू ग्रो.
सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस यहाँ पे जो लोग आएंगे उनका फंडिंग का लोन, मे बी दे आर इन फ्रॉम पुणे, मुंबई, कैलकाटा और एनी अदर प्लेस, बट दे कैन शो देयर पेपर्स हियर एंड कैन टेक द लोन फ्रॉम देयर ओन टेरिटरी। तो वो एक एडवांटेज है जिसके लिए हम हेल्प कर रहे हैं एमएसएमईज को और देयर ग्रो। सर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसमें हेल्प करेंगे, अदर इंडस्ट्रीज हैं जो इसमें हेल्प करने के लिए आएंगे। जब इन्वेस्टमेंट है तो हमारे साथ साथ ये भी होता है कि देखा जाता है जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम फायदा भी देखते हैं, दूसरी तरफ कंपनीज अलग अलग फायदा भी देखती हैं। मान लीजिए कि जब इन्वेस्टमेंट हुआ और उतनी तरीके से आउटकम प्रोसेस नहीं हो सका, चीज़ें नहीं निकल के बाहर आ सकी, तो जो प्रॉब्लम्स जो निकल करके आएंगी कि उसको भरपाई कैसे किया जाए, उसको भरा कैसे जाए, उसको किस तरीके से करें। Actually, देखिए, we are relentlessly working with the government in parallel. Parallel, we are working with the government secretary, joint secretary, minister, MOS. उनके साथ रेगुलर बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रीज की आती है वो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के पास। These are the even in the events also, whatever the problems the industry is facing, it will be highlighted to the government in the different sectors, including NITI Aayog, to take corrective action for the future. Thank you.